Good morning, dear students. Today we'll do worksheet 23 made by Directorate of Education, JNCT of Delhi, date 15/12/2020. Subject Mathematics, class 7th, English medium. Name of student right here, name of class teacher here. Today's topic is visualizing solid shapes. Dear students, this topic is very interesting topic. So you should listen this topic carefully and understand. Put your book on table or floor. Now draw its outline with pencil or chalk. Can you carry this outline of your book? How many dimensions of this outline? Yes, this outline has only length and breadth, no thickness or height or depth, and that is why you cannot carry. Such figures are called two-dimension figure. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रखा है क्या कि अपने बुक को टेबल पर रखो और चारों तरफ पेंसिल घुमा दो, ठीक है, या चौक घुमा दो। क्या जो फिगर बना उस फिगर को आप कैरी कर सकते हो, उठा सकते हो? इसके कितने डायमेंशन हैं? तो इसमें टू डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, ओके। So that's why you cannot carry it. So this type of figure is called two-dimension figure. Here are the example of two-dimension figure. This is rectangle. This is rectangle. Rectangle किस में नहीं आपको पता ही है, rectangle. This is circle, CIRCLE circle. This is triangle, TRIANGLE triangle. Next one is, this is trapezium, trapezium, or this figure is square. So these figures are two-dimension figure. Can you carry your book? Can you carry your book? Think why. Now recall things like ball, ice cream cone, almirah, dice, pipe, etc. You observe that beside length and breadth, these objects also have some thickness or height or depth. Such objects are called three-dimension figure. तो यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, बुक, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप, ये सारे क्या है? थ्री डायमेंशन फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ कुछ थिकनेस भी है, हाइट भी है और डेप्थ भी है। एंड दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन फिगर। एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री डायमेंशन फिगर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थ्री डायमेंशन फिगर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। दिस इज सिलेंडर, एंड दिस वन इज क्यूब, दिस वन इज cuboid, and this one is cone. These are the example of three dimension figure. Now some more about three dimension figure. Parts of solid figure, 3D figure. Face, vertices, edge. What is face, vertices and edge? Here look at the figure. This is the figure of cube. This one is face. So how many face? 6 face. Face 1, from here face 2, face 3, इसका बैक में एक और होगा, अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे आप रूम का एग्जांपल लो, रूम के 4 वॉल्स क्या है? ये फेस हैं। रूफ एंड फ्लोर भी फेस है, तो 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर की बात करें, लेट अस सी अंडरस्टैंड इट, रीड इट। द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज फेस. What is vertices? The corner of solid shape are known as vertices. यानी सॉलिड शेप के जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, ये कोना देखना एक बार ध्यान से दोबारा, ये कॉर्नर्स हैं, ये दिस इज द कॉर्नर्स, दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस, दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। यहाँ पे और इसके बैक में, इसके अपोजिट में एक और वर्टिसेस होगा, तो देयर आर 8 वर्टिसेस इन दिस शेप. What is edge? Edge are called line segment of its boundary are known as edge. Line segment or boundary is known as edge. See here, these are called edge. This one is called as edge. This one is also 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 edge. These are called edges. Now next, what is
बिफोर टेलिंग अबाउट नेट, इस फिगर को दिस फिगर इज कॉल्ड सिलेंडर। सिलेंडर में फेस कितने होंगे, फेस 1 फेस 2 एक कर्व सरफेस, ठीक है, ये भी एक सरफेस है, तो 3 फेस हो जाएंगे इसके अंदर। वैसे ही इसमें कितने फेस, 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने फेस होंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे। इसमें फेस कितने, एक कर्व सरफेस और एक नीचे होगा इसका, ये फेस हो जाएंगे, 2 फेस हो जाएंगे। नाउ नेट, व्हाट इज नेट? नेट इज a shape that is formed by unfolding a solid three shapes। यानी सॉलिड फिगर्स को जो अनफोल्ड है उसको अगर हम फोल्ड करें तो क्या हो जाएगा, वो 3D शेप बन जाए, दैट इज कॉल्ड नेट। एंड वन सॉलिड शेप कैन हैव मेनी टाइप ऑफ नेट। यानी एक सॉलिड शेप के बहुत सारे नेट हो सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द एबो फिगर। यहाँ पे क्यूबोर्ड है, क्यूबोर्ड में डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था 6 फेस होंगे, ठीक है, 8 एजेस एंड 12 12 एजेस एंड 6 एंड 8 वर्टिसेस, ठीक है। ऐसे ही क्यूब में सेम होगा, 6 फेसिस, 12 एजेस, ठीक है, एंड 8 वर्टिसेस। अब इसमें सिलेंडर और कोन रह जाएगा। सिलेंडर और कोन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिलेंडर कोन यहाँ दे रखा है, ये रहा सिलेंडर। ये सिलेंडर को देखो, तो यहाँ पे सिलेंडर में फेस कितने बताए थे मैंने, 3 फेसिस। एजेस इसमें कितने हैं, एजेस इसमें है ही नहीं, ठीक है, यह है, ये है, देखो ये एज है, ये एज, तो नीचे भी एज है, तो 2 एजेस होंगे इसके अंदर, सिलेंडर के 2 एजेस। वर्टिसेस इसमें कोई है ही नहीं, कोई भी कोना नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है, तो 0 वर्टिसेस। ऐसे ही अगर हम कोन की बात करें तो कोन में देखो, कोन में क्या है, फेसेस कितने होंगे, एक कर्व सरफेस और एक नीचे फेस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फेसेस, ठीक है। एज कितने हैं इसमें डिस्टेंस, इसमें एक ही एज होगा, ठीक है, ये वाला, तो 1 एजेस। एंड वर्टिसेस क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे 1 वर्टिसेस है, ठीक है। क्यूबोर्ड का एक बार दोबारा देख लो, क्यूबोर्ड्स का मैंने आपको समझाया था, फेस कितने हुए क्यूबोर्ड में, ठीक है। फेसिस क्या है, फेस 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5, इसके अपोजिट में एक फेस और है, तो 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसके एजेस की बात करें तो एज नंबर 1, एज 2, एज 3, 4 और एज 4, 4 इसके आगे 4 इसके पीछे, ठीक, 8। और उसके बाद ये हो जाएगा 9, ठीक है। और इधर से मतलब इसके अंदर कितने एजेस होंगे, 12 एजेस होंगे, ठीक है। तो 12 एजेस ये हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। और वर्टिसेस कितने हैं, कोने, इसके 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है। रूम्स के भी 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8। और सेम आपका क्यूब का हो जाएगा, सेम इस क्यूब का हो जाएगा, जो क्यूब बोर्ड में भरोगे वही क्यूब में होगा। यहाँ पे 6 फेसिस था, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस, सेम यहाँ पे 6 फेसिस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मैच द सॉलिड शेप्स विच देयर प्रॉपर नेट। तो ये आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब का नेट ये होगा, ये सिलेंडर का नेट ये होगा, ठीक है। और दिस इज कोन का नेट ये हो जाएगा, और ये पिरामिड है, पिरामिड का नेट ये हो जाएगा। लेट अस थिंक व्हेन यू स्क्वीज ए टेट्रा पैक like fruity or cartoon box, what shapes you get, and by separating the box to lay the box flat you will get the net from that box। यानी जो फ्रूटी और कार्टून बॉक्स होते हैं उसको आप फ्लैट करना तो उसका नेट मिल जाएगा आपको, और उसको क्लोज करोगे तो ये आपका 3D शेप्स मिल जाएगा, दैट इज क्यूब, that can be cube or that can be cuboid। Last point, COVID appropriate behavior message, wash your hands with soap and water regularly। Then dear students, in this way worksheet 23 subject mathematics class 7th English medium has been completed। Thank you for watching this video।